जो सब्जेक्ट है हम मुस्लिम लॉ जो है वो स्टार्ट करेंगे। जो टॉपिक्स हमारे सिलेबस में, मुस्लिम लॉ बहुत वाइडर सब्जेक्ट्स है, सारा हमारे सिलेबस में नहीं है। 5 टॉपिक जो हमारे सिलेबस में है, निकाह है, डिवोर्स या डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है, मेंटेनेंस है, इनहेरिटेंस है और अडॉप्शन है। अडॉप्शन या वो होगा, एक्नॉलेजमेंट भी हो सकता है साथ में। बस ठीक है। तो ये 5 टॉपिक है हमारे सिलेबस में। उसमें सबसे पहला टॉपिक हम मैरिज स्टार्ट करेंगे, बट थोड़ा सा मुस्लिम लॉ के बारे में, ज्यादा नहीं, 2-4 मिनट पढ़ेंगे। मुस्लिम लॉ इन इंडिया मींस द पोर्शन ऑफ द इस्लामिक लॉ। बात नहीं भाई, मुस्लिम लॉ इन इंडिया मींस द पोर्शन ऑफ इस्लामिक सिविल लॉ which is applied to a Muslim as a personal law. The place of Muslim law's origin in Arabia, where the Muhammad Prophet promulgated the Islam, and it is of that law which is established by a communication from God with reference to the Men's Act. One, a Shariat. Shariat is a very important in Muslim law. Is a law in wider sense. It means the totality of the Allah's commandment. Each one of the such commandment is called the hukum, and it is a doctrine of duties, and it consists of these Quran, Hadith, Sunnah, Ijma, Qiyas, etc. And there are 5 kinds of the religious injunction under the Shariat, and they are the farz, haram, mundub, makruh, and one more, jaiz. Jaiz. What is the meaning of these 5 farz? The duties which are strictly enjoined on Muslim, like the 5 daily prayers are farz. The 5 time performing the namaz is the farz. Haram, acts which are strictly forbidden to the Muslim, like wine. Wine is a haram for Muslims. Mandub, the things which the Muslim are advised to do, like the additional prayer on the Eid or the mundab, in addition to the 5 time of the performing namaz, the additional namaz at the time of the Eid, it is the mandub. Makruh, the things about which the Muslims are advised not to do, like the certain kinds of the fiqh are makruh. And jaiz, the things about which the Islam is indifferent, like the traveling on sea or the air, is a jaiz. Though there is no indications or the expressly mentioned in the Quran or the any other source of the Muslim law regarding the traveling on sea or the traveling by aeroplane, etc., but it is considered a jaiz. Fiqh, fiqh is means the proper law. It means the intelligence and covers the whole science of the jurisprudence. It implies the independent exercise of the intelligence as regarded the point of law, in the absence of their solution by the Quran or Hadith. Next one, who is Muslim? Upon whom the Muslim law is applicable. A Muslim is one who believes in the mission of the Muhammad as prophet, or one who says that there is one God and the Muhammad is his prophet, or one who believes in a number of the other essential belief in God and Muhammad. A person may be a Muslim by profession or by conversion. As per Shariat, if one of the parent is Muslim, the child will be considered a Muslim. The either parents of the child is the Muslim, then concerned child is deemed to be a Muslim as per the Shariat. A person born as Muslim continue to be a Muslim until he renounced the Islam after attaining the majority. भारत में जो मुस्लिम विधि है, इसका अर्थ क्या है? इस्लामिक जो सिविल विधि है उसका वह भाग जो मुसलमानों पर व्यक्तिगत विधि के रूप में, पर्सनल लॉ के रूप में जो लागू होता है,
इस्लामिक सिविल विधि का, वो क्या कहलाता है? वो मुस्लिम लॉ है, वो कहलाता है। अरब में जो है वो मुस्लिम विधि की उत्पत्ति का स्थान जो है वो माना जाता है, जहां मोहम्मद साहब ने इस्लाम का जो है प्रचार प्रसार है वो किया था। और यह वो विधि है जो मनुष्यों के कार्य के संदर्भ में ईश्वर से समाज द्वारा स्थापित की गई। मोहम्मद साहब और ऑलमाइटी गॉड के बीच में जो कम्युनिकेशन या संवाद हुआ, उसी को जो है वो एक रिटर्न फॉर्म वगैरह में कुरान आदि के रूप में जो है वो लिखा गया है। तो इस तरीके की एक डिवाइन है वो लॉ है, एक दैवीय उत्पत्ति है इस है वो लॉ की। शरीयत मुस्लिम लॉ के अंदर देखेंगे आप, शरीयत एक्ट है क्या 1937 का, मोस्ट प्रोबेबली, मुझे ऐसा क्यों रिकॉल हो रहा है, वो सायरा बानो जजमेंट जो है उसमें चैलेंज हुआ था। यस, शरीयत जो है ये व्यापक अर्थ में एक विधि है। इसका अर्थ है अल्लाह के आदेश की समग्रता, और ऐसे प्रत्येक आदेश को जो है वो हुक्म कहा जाता है, और ये कर्तव्यों का सिद्धांत है। और इसमें 5 बातें शामिल है शरीयत में, कुरान भी है, हदीस भी है, सुन्ना भी है, इजमा भी है और कयास भी है। शरीयत के अंतर्गत 5 प्रकार के धार्मिक आदेश कवर होते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या है? फर्ज। फर्ज क्या है? ऐसे कर्तव्य जो मुसलमानों पर कठोरता से लागू होते हैं, जैसे दिन में 5 बार नमाज पढ़ना जो है ये एक फर्ज है। हराम, ऐसे कार्य जो मुसलमानों के लिए कठोरता से निषिद्ध है, जैसे शराब पीना या शराब का सेवन करना है, वो क्या है? हराम है। मुंदू, वे चीजें जो मुसलमानों को करने की सलाह दी जाती है, जैसे ईद पर अतिरिक्त नमाज पढ़ना 5 नमाज के है वो अलावा, ये क्या है? मुंदूब है। मकरूह, वे चीजें जिनके बारे में मुसलमानों को न करने की सलाह दी जाती है, जैसे कुछ प्रकार के फिक्र जो है वो मकरूह है, या ब्याज लेना आदि जो है, सूदखोरी, ये भी जो है वो मकरूह की श्रेणी में जो है वो आती है। जायज, वे चीजें जिनके बारे में इस्लाम उदासीन है, मीन्स इस्लाम में कोई उल्लेख नहीं है अभिव्यक्त रूप से कुरान में या अन्यथा कहीं, जो भी मुस्लिम विधि के स्रोत है उसमें कोई उल्लेख नहीं है, जैसे समुद्र से या वायुयान से अब वो यात्रा करना है, वो क्या है? जायज है। फिकह एक शब्द जो, वैसे तो फिकह का मतलब लॉ से ही है, विधि। फिकह क्या है? उचित विधि, प्रॉपर विधि को जो है वो फिकह कहा जाता है। इसका अर्थ है बुद्धिमत्ता और न्याय शास्त्र के पूरे विज्ञान को शामिल करना है, और इसका तात्पर्य कुरान और हदीस द्वारा उनके समाधान की अनुपस्थिति में विधि के किसी बिंदु के संबंध में बुद्धिमत्ता के स्वतंत्र प्रयोग से। कुरान और हदीस जिस बिंदु पर साइलेंट है, मौन है, कोई उल्लेख नहीं है, ऐसे किसी विधि के बिंदु पर है वो विजडम से या बुद्धिमत्ता से जो है वो प्रयोग करना जो है वो क्या है? फिकह है वो कहलाता है। मुस्लिम या मुसलमान कौन है जिन पर ये मुस्लिम विधि व्यक्तिगत विधि के रूप में वो लागू होती है? मुसलमान वो है जो पैगंबर के रूप में मोहम्मद के मिशन में विश्वास करता है, या अल्लाह एक है और उसके पैगंबर जो है वो कौन है? मोहम्मद साहब है, इस बात पर जो है वो विश्वास करता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ऐसा ही है ना? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस कलमे में जो विश्वास करता है वो क्या है? वो है वो मुसलमान है। जो ये कहता है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब उसके पैगंबर है, जो ईश्वर और मोहम्मद में कई अन्य आवश्यक मान्यताओं में जो है वो विश्वास है वो करता है। मोहम्मद साहब की मान्यताएं जो है उनको मानता है, अल्लाह की जो मान्यता है उनको मानता है। और कोई व्यक्ति जो पैसे से या धर्मांतरण द्वारा मुसलमान जो है वो हो सकता, बाई बर्थ मुस्लिम होना आवश्यक नहीं है, बाई कन्वर्जन एटसेट्रा भी मुस्लिम है वो हो सकता है। शरीयत के अनुसार यदि माता पिता में से कोई एक मुस्लिम है तो वो बालक है वो क्या समझा जाएगा? मुस्लिम है वो समझा जाएगा। मुस्लिम के रूप में पैदा हुआ व्यक्ति तब तक मुस्लिम बना रहता है जब तक कि वो वयस्क होने के बाद इस्लाम का त्याग नहीं कर देता है। यह कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट था जो हमारे सिलेबस में नहीं है, सिलेबस से बाहर का था, जो आपसे नहीं पूछा जाएगा, जनरल जानकारी थी ये आप लोगों के लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, जो सिलेबस का भाग है, वो है मैरिज और निकाह। What about the nikah or the Muslim marriage in Muslim law? Marriage is a civil contract
between a man or woman who is lawfully eligible to be his wife with the objective of the joint life and breeding. According to Hidayah, what is the marriage? It signifies the conjunction. Generally, in language of law, it implies a particular contract used for purpose of legalizing the intercourse and procreation of children and legitimacy. According to the Justice Mahmood, Muslim marriage is not sacrament but only a civil contract. According to Abdul Rahim, nikah is ibadat as well as muamalat. Nikah is ibadat as well as muamalat. In law, it implies a particular contract used for the purpose of legalize the generation. हिंदी में जो है विवाह या निकाह, हिदाया जो है उन्होंने निकाह को या विवाह को किस तरीके से परिभाषित किया है। विवाह एक विधिक प्रक्रिया, एक लीगल प्रोसेस है जिसके द्वारा स्त्री और पुरुष के बीच समागम और बच्चों की उत्पत्ति और उनका और स्वीकरण या धर्मस्थता जो है वो पूर्ण रूप से क्या माना जाता है, विधि मान्य माना जाता है, उसको मान्यता वो दी जाती है। निकाह एक ऐसी विधिक प्रक्रिया है जिससे पुरुष और स्त्री के बीच में कोहेबिटेशन लीगल माना जाता है, उनसे उत्पन्न हुए बच्चे जो है वो लेजिटिमेट है, वो माने जाते हैं। ऐसी विधिक प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, वो जो है निकाह या मैरिज कहलाती। न्यायाधीश महमूद ने जो है उन्होंने भी परिभाषित किया है विवाह को। विवाह मुसलमानों में धार्मिक संस्कार नहीं है। महमूद मोस्ट प्रोबेबली अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा 1886 का जो जजमेंट है मुस्लिम लॉ का इंपॉर्टेंट, उसमें जस्टिस महमूद थे। उन्होंने उस जजमेंट में ये बात कही है कि विवाह मुसलमानों में क्या है, इट इज नॉट अ रिलीजियस सैक्रामेंट, ये धार्मिक संस्कार जो है वो नहीं है, बल्कि शुद्ध सिविल संविदा है, इट इज प्योरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट। विवाह जो है मुसलमानों के अंदर वो एक धार्मिक संस्कार है, वो नहीं है जैसा कि हिंदूज के अंदर जो है वो विवाह क्या है, एक धार्मिक संस्कार है, एक 16वां संस्कार जो है वो कंसीडर किया जाता है परिणय है वो संस्कार के रूप में। बट मुसलमानों के अंदर जो है वो विवाह क्या है, प्योरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट, एक विशुद्ध रूप से सिविल संविदा है। प्रस्ताव और स्वीकृति के पूर्ण होने पर उससे उत्पन्न होने वाले अधिकार और दायित्वों का सृजन तत्काल हो जाता है और वे अधिकार और दायित्व किसी पूर्वता पर है वो निर्भर नहीं करते हैं। अब्दुल रहीम जी ने भी जो है वो मैरिज को और निकाह को परिभाषित किया है। मुस्लिम रिवाजों के अनुसार विवाह सार्थक एक सिविल संविदा होते हुए भी क्या है, श्रद्धात्मक कार्य है। क्या है, श्रद्धात्मक कार्य है। इंग्लिश में तो कुछ हमने और पढ़ा था, इसके लिए जो दूसरा जो शब्द उन्होंने यूज लिया है कि ये इबादत क्या है, ये इबादत और मुआमलात। नहीं, श्रद्धात्मक है, दोनों है। क्या है ये, सिविल संविदा होते हुए श्रद्धात्मक कार्य है। मतलब इसका मतलब क्या है, ये इबादत का कार्य भी है। श्रद्धा किसके लिए, इबादत के लिए, और ये मुआमलात किसके लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ये जो है ये श्रद्धात्मक या धार्मिक कृत्य भी है और इसके साथ साथ ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट, दोनों के जो है वो एलिमेंट है वो एग्जिस्ट है वो करते हैं। निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि मुस्लिम्स के अंदर विवाह या निकाह क्या है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, सिविल संविदा है, और जिसका उद्देश्य समागम और संतानों उत्पत्ति को क्या है, लीगलिटी या वैधता प्रदान करना। अकॉर्डिंग टू द टर्मिजी, what are the objects of the Muslim marriage? There are several objects of the Muslim marriage. First, the restraint of sexual passion. Second, the ordering of the domestic life. Third one, increase of family, or the self-passions in care and responsibility of the wife and children, and upbringing of the virtuous children. All these are the objects of the Muslim marriage as per the jurist Tirmizi. तिर्मिज़ी जो है वो बताते हैं कि मुस्लिम विवाह के ये 5 उद्देश्य है। क्या, काम वासना का विनियमन, ग्रस्त जीवन का विनियमन, वंश वृद्धि करना, और पत्नी और बच्चों की देखरेख और जिम्मेदारी में आत्मसंयम, और सदाचारी जो बच्चे उनका पालन।
ये 5 जो है वो मुस्लिम विधि के क्या है उद्देश्य है, सॉरी मुस्लिम विवाह के। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज? देयर आर 4 पॉइंट्स related to the nature of the Muslim marriage. First nature is nikah is purely civil contract or contract for sale. Who said that the nikah is a purely civil contract or the contract for sale? Justice Mahmood and Justice Mittar. Justice Mahmood or Justice Mittar said that in Muslim law the nikah is purely civil contract and it is not a religious sacrament. Abdul Qadir versus Salima, 1886, PV Council's judgment. In this judgment, the Justice Mahmood said that marriage amongst the Mohammedans is not a sacrament but purely a civil contract, though it is solemnized generally with the recitation of a certain verses from the Quran, yet the Mohammedan law does not positively prescribe the any service peculiar to the occasion. In addition to that, the Sabru Nisa versus Sabdu Sheikh and others, 1934 Calcutta High Court, in that case law Justice Mittar said that the Muslim marriage is purely civil contract. Second point related to the nature of the Muslim marriage is civil contract as well as religious sacrament. Muslim marriage is civil contract as well as religious sacrament, and in respect of this nature of the Muslim marriage, which jurists and which judges are concerned, Professor Jung, Abdul Rahim, Justice Suleiman, etc., in favor of this statement of the nature of the Muslim marriage. Anis Begum versus Muhammad Istafa, 1933, PV Council. In this case law, Justice Suleiman said that the Muslim marriage, by holding it both a civil contract and a religious sacrament. Third statement related to the nature of Muslim marriage is essential act for every Muslim as per the Muhammad Sahib or the one of the Sunnah of the Muhammad Sahib. Every Muslim who is competent to marry must get married. It is the Sunnah of the Muhammad Sahib. Sahab ya Sahib, whatever. Fourth, Muslim marriage is not purely contract. Muslim marriage is not merely a civil contract because there are so many reasons. Unlike civil contract, it cannot be made contingent on the future event. Unlike the civil contract, it cannot be for a limited time, but there is an exception as mutta marriage in Muslim law. Unlike civil contract, the analogy of the lien cannot be applied to a marriage contract. These are the certain features which differentiate from a civil contract to the Muslim marriage. Therefore, we cannot say that the Muslim marriage is a civil contract. हिंदी में देखेंगे अब, ये कुछ व्यक्तियों की व्यक्तिगत राय. अल्टीमेटली व्हाट इज करेक्ट? The Muslim marriage is civil contract. It is a correct position of the nature of the Muslim marriage. मुस्लिम निकाह या विवाह की क्या प्रकृति है? 4 बातें कह सकते हैं मोटी मोटी हम इस या वो प्रकृति के बारे में. पहला जो व्यू है वो ये है कि मुस्लिम विवाह क्या है? शुद्ध सिविल संविदा है या विक्रय की संविदा है. और इस व्यू के फेवर में कौन कौन है? न्यायाधीश महमूद है और न्यायाधीश मित्तर है. कौन है? न्यायाधीश महमूद और न्यायाधीश मित्तर ने जो है वो इन दोनों ने ये माना है कि मुस्लिम विवाह क्या है? विक्रय की संविदा के समान है या शुद्ध रूप से है वो सिविल संविदा है. अब्दुल कादिर बनाम सलीमा, 1886, इलाहाबाद हाई कोर्ट या पीवी काउंसिल व्हाटएवर. द न्यायाधीश महमूद सेड दैट द मुस्लिम मैरिज इज प्योरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इज नॉट रिलीजियस सैक्रामेंट. एंड द न्यायाधीश मित्तर इन सबरू निसा बनाम Sabdu Sheikh and others, 1934, said that the Muslim marriage is a purely civil contract and it is not a religious sacrament. Second view in respect of the nature of Muslim marriage, मुस्लिम विवाह के संदर्भ में दूसरा दृष्टिकोण क्या है? मुस्लिम विवाह में सिविल संविदा के निम्नलिखित तत्व जो है वो विद्यमान है या ये सिविल संविदा के जो है वो समान है. ये क्या बात होगी?
इसका कुछ रीजन भी दिया, ये पॉइंट नहीं है। कैसे हम कह सकते हैं कि साहब मुस्लिम जो मैरिज है वो सिविल कॉन्ट्रैक्ट के जैसा है? लॉजिक क्या है? मुस्लिम विवाह में भी संविदा की तरह क्या होते हैं? प्रोपोजल एंड एक्सेप्टेंस होती है, प्रस्ताव और स्वीकृति होती है, इज़्ज़त एंड कबूल जो है वो इसमें भी होता है मुस्लिम मैरिज में। जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट का जो फॉर्मेशन है उसके लिए प्रोपोजल एंड देन एक्सेप्टेंस है, इसी तरीके का यहां पे भी सिविल संविदा की तरह पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति भी होती है इसमें, फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी। जैसे सिविल कॉन्ट्रैक्ट में चाहिए फ्री कंसेंट, मैरिज में भी फ्री कंसेंट चाहिए। विक्रय की संविदा में मूल्य या कीमत के बदले संपत्ति का अंतरण होता है। ठीक इसी प्रकार जो है मुस्लिम विवाह में भी विवाह की संविदा में पत्नी जिसको विषय वस्तु या संपत्ति माना जाता है और प्रतिफल उसके लिए क्या है? मेहर के रूप में जो है वो प्रतिफल है। सेकंड जो कैटेगरी है मुस्लिम विवाह की प्रकृति के बारे में, जो ये मानते हैं कि मुस्लिम विवाह सिविल संविदा भी है और इसके साथ साथ ये क्या है? धार्मिक संस्कार या श्रद्धात्मक कार्य भी है। सिविल संविदा भी है और इसके साथ साथ धार्मिक संस्कार भी है। ये दोनों है। इस बात को कौन कौन मानते हैं? प्रोफेसर जंग इस बात के सपोर्ट में, अब्दुल रहीम भी इसके सपोर्ट में, सहाबा करके एक जुरिस्ट है वो भी सपोर्ट में, और न्यायाधीश सुलेमान जो है वो भी सपोर्ट में। न्यायाधीश सुलेमान जो है वो कौन सा है? वो अपना इस्तफा अनीस बेगम बनाम मोहम्मद इस्तफा, अनीस बेगम बनाम मोहम्मद इस्तफा, ये 1933 इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो जजमेंट है इसमें न्यायाधीश सुलेमान जो है वो थे। और क्या कहा उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम विवाह जो है वो सिविल संविदा और धार्मिक संस्कार जो है वो दोनों है। थर्ड एक और मुस्लिम विवाह की प्रकृति के बारे में जो है व्यू है, विवाह करना हर मुस्लिम का आवश्यक कार्य है। विवाह करना जो है हर मुस्लिम का क्या है? आवश्यक कार्य। ये मोहम्मद साहब का सुन्ना है। ये क्या है? ये मोहम्मद साहब का सुन्ना है या उनकी परंपरा है, उनका आदेश है, ऐसा कंसीडर किया जाता है। और मोहम्मद साहब ने कुरान में एक जगह जो है ऐसी बात है वो कही भी है कि जो प्रत्येक मुस्लिम जो विवाह करने में समर्थ या सक्षम है उन्हें विवाह क्या करना चाहिए? अवश्य रूप से करना चाहिए। और इससे आगे भी एक बात कही कि जो इसके लायक नहीं है, समर्थ नहीं है, उनको इससे दूर भी रहना चाहिए। यह भी कहा है जो सक्षम है, समर्थ है, उनको तो विवाह करना चाहिए आवश्यक रूप से, और जो कैपेबल है वो नहीं है उनको इस वो विवाह नामक संस्था से दूर भी रहना चाहिए। इस तरीके के जो है एक सुन्ना या एक मोहम्मद साहब की परंपरा है वो है। और लास्ट जो है मुस्लिम विवाह पूर्ण रूप से संविधानिक। कुछ विधि शास्त्रियों का मानना ऐसा है कि ये प्योरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, विशुद्ध रूप से सिविल संविदा है वो नहीं है। उन्होंने कुछ कमियां भी बताई कि किस तरीके से सिविल संविदा और मुस्लिम मैरिज के बीच में डिफरेंस है। कुछ मुस्लिम विधिवेताओं के अनुसार मुस्लिम विवाह जो है पूर्ण रूप से या शुद्ध रूप से सिविल संविदा नहीं है। और उन्होंने कुछ आधार भी बताए। सिविल संविदा की तरह विवाह भविष्य की घटनाओं पर आधारित नहीं हो सकता। जिस तरीके से सिविल कॉन्ट्रैक्ट जो है फ्यूचर इवेंट पे कॉन्टिजेंट हो सकता है, भविष्य की घटनाओं पर समाश्रित मींस कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं, इस तरीके का विवाह में नहीं। सिविल संविदा के तरह यह सीमित कालावधि के लिए नहीं हो सकता, बट मुत्ता विवाह इसका क्या है? अपवाद है। सिविल कॉन्ट्रैक्ट एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, 1 साल में कंस्ट्रक्शन का कार्य कर देंगे या ये वो आपके लिए ये है वो कार्य कर देंगे, इस माल की डिलीवरी कर देंगे, तो ये तो लिमिटेड टाइम के लिए। बट ये तो फुल टाइम है, जब तक लाइफ है, जीवन है, तब तक जो है वो उनकी रिलेशनशिप है। तो इसलिए ये इस बिंदु पे भी सिविल कॉन्ट्रैक्ट से डिफर करता है। और सिविल संविदा का जो धारणा अधिकार है, राइट टू लियन, जो सिविल कॉन्ट्रैक्ट में जो अवेलेबल रहता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 170 और 171 में पर्टिकुलर लियन और जनरल लियन का जो राइट है वो दे रखा है, वो विवाह में लागू नहीं होता। तो इस तरीके से कुछ जूरिस्ट है उन्होंने कहा कि ये कुछ कमियां हैं, इस कारण से हम ये तो नहीं मान सकते कि ये प्योरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट। बट करक्स क्या है इसका? करक्स ये है कि ये जो है वो मुस्लिम विवाह ये क्या है? सिविल संविदा। ये बेस्ट जो है वो आंसर।